Hello students, good morning everyone. Today we will continue with the lesson The Great Stone Face 1. We will start second part of this lesson, but before start we will discuss about part 1 in brief. So in our last session we have discussed that there was a man called Gathergod. He had left his native valley many years ago. He had become quite a rich man in a distant seaport. He decided to return to his native valley. There was a rumor that Gathergold looked like the Great Stone Face. Gathergold had the face of an old man with yellow skin. The people considered him the image of the Great Stone Face. Ernest gazed up the valley. The great stone face seemed to reject Gathergold as its likeness. Now let's start second part of this lesson. The years went on, and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Their idea was that this was a folly but pardonable. Then he think they did not know that the great stone face had become a teacher to him and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. अब क्या हुआ तो धीरे धीरे अर्नेस्ट ग्रोन अप होने लगा, बड़ा होने लगा, जैसे कि एक यंग मैन होता है. एवरी डे ही वुड गो ऑफ बाय हिमसेल्फ एंड गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. वो हर रोज अपना काम ओवर करके ग्रेट स्टोन फेस को गेज करता रहता था. ही वंडर्ड व्हाई इट्स लाइकनेस वाज डिलेइंग इट्स अपीयरेंस. नाउ by this time, Gathergold had become poor and died without establishing his likeness with the stone face. They did not know that from this wood came a better wisdom than could be learned from books. अब अर्नेस्ट सोचने लगा कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो तो उसके लिए एक टीचर बनता जा रहा है. नाइदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम सो नेचुरली in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. अब क्या हुआ तो जो गैदरगोल्ड था उसकी डेथ हो गई एंड उसको बरी किया गया, दफनाया गया. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. अब उसकी वेल्थ जो हमने कल बात की थी कि वो इतना रिच था, उसके पास इतनी वेल्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर हम काउंट करने बैठे तो 100 ईयर तो ऐसे ही निकल जाए. अब ये जो उसकी वेल्थ थी वो उसकी एक बॉडी थी एंड उसके एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व का एक स्पिरिट था. अब वो क्या हुआ तो उसकी डेथ से पहले तो वो उसकी वेल्थ जो थी वो चली गई. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. अब ये हुआ ही था वहाँ तो, और कोई चीज़ हुई कि कोई एक वैली पे रहता था, उसका एक सन एक सोल्जर बना था बहुत सालों पहले. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर. अब उसने बहुत फाइटिंग की एंड फाइटिंग करते करते वो एक महान कमांडर बन गया.
ही वॉज नॉन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। और अगर जब वो बैटल फील्ड में जाता है, युद्ध भूमि में युद्ध खेलने जाता है, युद्ध करने जाता है, तो वो कौन से नेम से फेमस है? ब्लड एंड थंडर। Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. अब क्या हुआ? तो अब वो ओल्ड हो चुका था, साथ साथ टायर्ड भी हो चुका था अपनी सारी ज़िंदगी काम करते करते। तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी नेटिव वैली में रिटर्न करना चाहता हूँ, मीन्स जाना चाहता हूँ। द इनहेबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनोनेड कमांडर। अब वो जो इनहेबिटेंट्स है, जहाँ पर वो रहता था पहले, उसके जो वहाँ पर जो दूसरे लोग रहते थे, वो लोग, उसके नेबर्स एंड उसके अपने बच्चे, वो भी प्रिपेयर होने लगे कि ये रिनोनेड कमांडर को वेलकम करने के लिए। इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। अब लोग ये सोचने लगे, लोग ये बातें करने लगे कि एट लास्ट ये जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी तरह दिखने वाला इंसान आ गया है। ग्रेट, देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। अब अगेन दूसरी बार पूरी वैली में एक एक्साइटमेंट होने लगी लोगों के बीच में। एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लेंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गैजिंग एट इट for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work. अब जिस दिन वो जनरल लौटने वाला था, आने वाला था वापस, तब उस दिन अर्नेस्ट एंड वो उस वैली के जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे वो सब लोगों ने अपना काम धाम छोड़कर and proceed to the spot where a great banquet had been prepared. वो लोग अपना काम धाम छोड़कर जहाँ पर वो आने वाला था, बैंकेट इट मीन्स feast, बहुत बड़ी संख्या में बहुत लोगों का जो डिनर होता है या लंच होता है उसे हम feast बोलते हैं। तो जहाँ पर feast प्रिपेयर होने वाला था वहाँ पर ये लोग आकर पहुँच गए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोवर्ड। अब सोल्जर्स थे वो गार्ड पे खड़े रह गए, फ्लैग वेव होने लगे, जो क्राउड था लोगों का, जो भीड़ थी वो चिल्लाने लगी, रोवर करने लगी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अब जो अर्नेस्ट था वो ब्लड एंड थंडर्स का फेस देखने के लिए वहाँ पर खड़ा था, बट वो बहुत दूर था। हावेवर ही कुड हियर सेवरल वॉइस, उसको बहुत सारी आवाज़ सुनने में आई। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। अब एक इंसान था, वो खुशी के मारे नाचने लगा एंड चिल्लाने लगा, इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली। क्या चिल्लाने लगा? कि ये तो ग्रेट स्टोन फेस से एग्जैक्टली मैच होता है। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। अब किसी दूसरे इंसान ने बोला वंडरफुली लाइक इट, अरे ये तो ग्रेट स्टोन फेस के साथ मिलता जुलता फेस है। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और तीसरा इंसान बोलने लगा कि हाँ क्यों नहीं, ये जो कमांडर है ये तो ये एज और एनी अदर एज, कोई भी एज का ग्रेटेस्ट मैन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side he also could see the great stone face. अब दूरी से अर्नेस्ट एट लास्ट जब वो जनरल का फेस देखता है तो उसे ये फील होता है कि हाँ ये जो जनरल है उसका फेस जो है ये ग्रेट स्टोन से उसके फेस से मिलजुल कर आता है। एक तरफ वो जनरल का फेस देख रहा है एंड इन द सेम ग्लैंस टू द अदर साइड ही कुड सी द ग्रेट स्टोन फेस। दूसरी साइड से वो देख रहा है जनरल के फेस की तरह दिखने वाला ग्रेट स्टोन फेस। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. अगर जो क्राउड था, जो पीपल थे, वो लोग
जोर जोर से चिल्ला कर नहीं बोलते, अनाउंस नहीं करते. देन अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट. Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest, he will come. अब जैसे कि वो ग्रेट स्टोन फेस उसको उसके साथ बातें कर रहा था और बोल रहा था कि अर्नेस्ट, फियर नॉट, डरना मत, वो एक दिन जरूर आएगा. वैसे ही आज अर्नेस्ट का हर्ट भी बोल रहा था, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल come. So at last we have completed this lesson. At last we have seen that on the return of general, on his return, he was welcomed warmly. The people considered him as the likeness of the great stone face. Ernest failed to recognize any likeness between blood and thunder and the great stone face. His heart assured him that the real face had still to come. So now we have completed this lesson. In our next session we will discuss the exercise and question answer of this lesson.